Hello everyone. Today we will discuss further in chapter cell cycle and cell division. As we have discussed in the previous lecture about interphase, today we will discuss about the mitotic phase or the divisional phase or the multiplication phase, or simply said M phase, right? So it is a typical divisional phase where a cell divides to form two daughter cells. Clear? Simple sa meaning tha. Now it is the shortest part of a cell cycle. As we have discussed earlier, the longest phase of the cell cycle is G phase, which is of about 23 hours, and only 1 hour is given to the M phase. So it is the shortest phase of cell cycle. Now in this divisional phase, which is divided into two parts, one is called karyokinesis. First is karyokinesis and second is cytokinesis. In karyokinesis, division of nucleus takes place, while in cytokinesis, division of cytoplasm takes place. Just simply we can say, if this is a cell and this is its nucleus, the first part of M phase is karyokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. So first is karyokinesis, where nucleus get divided, and later cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. Cytoplasm divide to form two daughter cells. So karyokinesis and cytokinesis, both these are the process of M phase. So after completing M phase, a parent cell divide to form two daughter cells, right? Now, first we discuss about karyokinesis, later we will discuss about cytokinesis. In karyokinesis, which is further made up of four subphases as prophase, metaphase, anaphase and telophase. So we will discuss about prophase, then metaphase, then anaphase and then telophase, right? So we'll start with the prophase. So in prophase, what are the points which you have to remember? First is, out of the four phases of karyokinesis, prophase, metaphase, anaphase and telophase, this prophase is the longest phase of karyokinesis. First important point. Okay? Next, the most important part of this prophase is कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन. या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन का मतलब क्या था? कंस्ट्रिक्ट करना. किसको? क्रोमेटिन को. ठीक है. और किसका फॉर्मेशन कर देना? क्रोमोसोम का. तो याद रखना बच्चों, क्रोमेटिन गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम इन प्रोफेज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, अब इस डायग्राम में देखिएगा, ये सेल थी जो कौन सी फेज में आई है? प्रोफेज. अब इस सेल में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रोफेज सबसे लंबी फेज है. सेकंड, ये जो क्रोमेटिन था ये कंडेंस्ड होकर क्या बना रहा है? क्रोमोसोम. दिख रहा होगा, फोकस करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर फोकस करके देखिएगा. क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाया है? क्रोमोसोम. और इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर इस क्रोमोसोम को मैं बाहर बना रहा हूं, देखिएगा कितने क्रोमेटिड हैं, याद रखिएगा. जो हम ऑलरेडी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम. सो फाइनली क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, अब ये जो साइटोप्लाज्म था ये बहुत ही ज्यादा विस्कस हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, जिससे सेल ऑर्गेनल्स दिखना बंद हो जाएंगे. किसमें? माइक्रोस्कोप में. सो द सेल ऑर्गेनल्स गेट डिसअपीयर ड्यूरिंग दिस फेज. कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं? गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, और भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर. किसको छोड़कर? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़कर? सेंट्रियोल्स को छोड़कर, जो कहां पर पहुंच जाएंगे? दे रीच एट
पोल्स। देखिए स्टार्टिंग में कहां पर होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर होते हैं, कौन, सेंट्रियोल्स। लेकिन जब प्रोफेज खत्म हो जाता है उस टाइम पर, जैसे ही एंड हो रहा होता है लेट प्रोफेज में, these centriole reach at poles and start releasing spindle fiber। क्या रिलीज कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो centriole move towards opposite pole and release spindle fibers। स्पिंडल फाइबर उन्होंने स्टार्ट कर दी है शो करना, ठीक है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। फाइनली लेट प्रोफेज में आपको क्या दिखाई देगा, सेल की मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो गया, विस्कस हो गया है, डेंस हो गया है। सेल ऑर्गेनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी या मैं बोलूंगा डेंस हो गया ज्यादा, कौन, साइटोप्लाज्म। स्पिंडल फाइबर्स रिलीज हो गए किससे, सेंट्रियोल से, जो कहां पर पहुंच गए हैं, अपोजिट पोल्स पर, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट description of prophase. Now I'll start with the metaphase. Now we are discussing about the metaphase, most important phase of karyokinesis, right? So question arises in NEET, what is the characteristic which indicate the beginning of metaphase? So याद रखिएगा कि मेटाफेज कब स्टार्ट होती है, कैसे पता लगेगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी, that indicate the beginning of metaphase। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिसअपीयर हो चुकी है, that indicates the beginning of metaphase। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप याद रखिएगा कि अगर किसी को भी कैरियोटाइप करना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैरियोटाइप मींस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो किसी भी साइंटिस्ट को अगर कैरियोटाइपिंग करनी है तो बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम इज मेटाफेज, राइट। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज इजीली स्टडीड, और वी कैन से इट इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे यहां पर इस डायग्राम में एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है। और हर क्रोमेटिड के बिल्कुल सेंटर में एक प्रोटीन की डिस्क है, जिसको हमने पहले भी बात करी थी, काइनेटोकोर, ठीक है। सो इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं और एक क्रोमेटिड पे एक काइनेटोकोर है, तो टोटल कितने काइनेटोकोर हो गए हैं एक क्रोमोसोम में, दो, ठीक है। यहां पर सेंट्रियोल से क्या रिलीज हुए थे, स्पिंडल फाइबर। इस पोल पर जो सेंट्रियोल है उससे स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ा है, और इस उसी क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड से काइनेटोकोर से अपोजिट पोल का क्या जुड़ेगा, सेंट्रियोल से निकला हुआ क्या स्पिंडल फाइबर। तो वापस इसको समझिए, क्या, इसको अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, हर क्रोमेटिड के सेंटर में प्रोटीन की डिस्क है जिसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। इस सेंट्रियोल से और इस सेंट्रियोल से, यानी अपोजिट पोल के सेंट्रियोल से क्या रिलीज हुए, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। एक क्रोमोसोम में आकर जुड़ रहे हैं क्या, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल एट द साइट कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से टोटल कितने स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ रहे हैं, टोटल कितने आकर जुड़ रहे हैं, दो, लेकिन ऑफ अपोजिट पोल एट टू काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था, क्या, कि मैक्सिमम बच्चे जब डायग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि ये स्पिंडल फाइबर कहां आकर जुड़ रहे हैं, एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या थी, वो जगह जहां पर दो काइनेटोकोर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, द अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऑप्शन में सेंट्रोमियर भी था और काइनेटोकोर भी था, तो याद रखना सेंट्रोमियर तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया था,
लेकिन ये स्पिंडल फाइबर पर्टिकुलरली कहां पर आकर अटैच हो रहे हैं, तो याद रखना किससे अटैच हो रहे हैं, एट ए प्रोटीन डिस्क कॉल्ड काइनेटोकोर। तो याद रखना क्या, क्रोमोसोम कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड एंड ऑन ईच chromatid central protein disc called kinetochore is found, which is the attachment site of spindle fiber. So it is the detailed description of metaphase. ठीक है, अब next हम पढ़ने वाले हैं क्या, anaphase. So in anaphase the first point you have to remember that it is the shortest stage of karyokinesis, right? The longest was prophase and the shortest is anaphase. First point, right? Now it is the most important phase of karyokinesis. ठीक है, अब इस फेज में ड्रामेटिकली बहुत तगड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म। आइए पढ़ते हैं क्या है ये पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म। देखिएगा बेटा जी, ये मैंने डायग्राम जो बनाया ये अभी भी मेटाफेज का ही है। इस मेटाफेज के डायग्राम में देखिएगा आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। क्या, सेंट्रियोल जो था, इस सेंट्रियोल के आसपास कुछ प्रोटीन के फाइबर्स का जेलेशन हो जाएगा, यानी जेल फॉर्म में प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएंगे। किसके आसपास, सेंट्रियोल के आसपास। These fibers of protein are called chromosomal fiber और एस्ट्रल रेज। इनको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल रेज और क्रोमोसोमल फाइबर, जो किसके आसपास एक्यूमुलेट हो गए हैं, सेंट्रियोल के आसपास, जिनका नाम क्या है, क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट एक दूसरे फाइबर देखिएगा जिनका नाम है इंटरजोनल फाइबर। ये कहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये इक्वेटर पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। कहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इक्वेटर पर, उसी इक्वेटर पर जहां पर क्रोमोसोम अलाइन हो चुके थे, किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, सो दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, जहां पर उनके सेंटर में, इनके सेंटर में कुछ फाइबर अलाइन हो रहे हैं जिनका नाम है इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, अब कुल मिला के आपको ये दो फाइबर दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। ये जो क्रोमोसोमल फाइबर हैं, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज ये एक रूम है, इस रूम का ये वाला एरिया जो था, ये एक पोल था जहां पर मैं खड़ा हूं, और मैं हूं सेंट्रियोल। ठीक है, मैंने अपने अंदर से निकाले क्या, स्पिंडल फाइबर। सपोज ये मेरा हाथ क्या है, स्पिंडल फाइबर। मैं कौन हूं, सेंट्रियोल। मेरे से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और मेरे चारों तरफ यहां पर क्या लगे हुए हैं, क्रोमोसोमल फाइबर। उन्हीं में से कुछ क्रोमोसोमल फाइबर किससे अटैच हो रहे हैं, देखिएगा ये क्रोमोसोमल फाइबर किससे अटैच हो गया, स्पिंडल फाइबर से। तो स्पिंडल फाइबर किसने निकाला, सेंट्रियोल ने। और सेंट्रियोल के चारों तरफ कौन अलाइंड हो गए थे, कौन, एस्ट्रल रेज या क्रोमोसोमल फाइबर, जो जुड़ चुके हैं, किससे अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर से। समझ में आ गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोमल फाइबर स्टिमुलेट करेंगे किसको, स्पिंडल फाइबर को। ये क्रोमोसोमल फाइबर जो किससे जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से, इनको स्टिमुलेट करेंगे क्या करने के लिए, खींचने के लिए, पुल करने के लिए। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये स्पिंडल फाइबर किससे जाकर जुड़ा हुआ था, ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था एक क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड से, और अपोजिट स्पिंडल फाइबर उसी क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, यानी कौन सा मैकेनिज्म होएगा, पुलिंग या पुशिंग, आंसर आपको मिल जाएगा कौन सा, पुलिंग। पुलिंग मैकेनिज्म से कौन सेपरेट होएगा आपका, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, पहली चीज। दूसरा, इन दोनों के बीच में कौन सा दूसरा फाइबर मिल रहा था, इंटरजोनल फाइबर। अब ये इंटरजोनल फाइबर एक्सपैंड होगा, कौन एक्सपैंड होएगा, इंटरजोनल फाइबर। ये इंटरजोनल फाइबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे ये दोनों क्रोमेटिड और अलग हो जाएंगे। यानी फाइनली कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्या, सिंपल सी, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। और इनको अलग करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे, दो मैकेनिज्म, वन इज कॉल्ड पुलिंग एंड वन इज कॉल्ड पुशिंग।
पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? क्रोमोसोमल फाइबर। और पुशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर इनके बीच में मिल रहा है जो पुश करेगा। किसको पुश करेगा? दो क्रोमेटिड को। और पुलिंग कौन कर रहा था? क्रोमोसोमल फाइबर जो पोल्स पे था, जो खींच रहा है किसको? स्पिंडल फाइबर के थ्रू किसको? क्रोमैटिड को। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मेरे को डिटेल में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आता एनाफेज में, कि सीधा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या कि भैया हमारे ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट, या क्रोमोसोम जो है टूट जाएगा, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर पार्ट है वो स्प्लिट हो रहा है। कैसे स्प्लिट हो रहा है ये तो बता नहीं रखा, तो ये बताना जरूरी था कि ये स्प्लिट किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म, कि कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर जो है ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, जिससे एक क्रोमेटिड इधर की तरफ जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से सुने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं कि एक? तो याद रखना दो भी हो सकते हैं और एक भी। ठीक है, इस डायग्राम में जब आप देखेंगे मेटाफेज में, मैंने बोला था बहुत ड्रामेटिकली चेंज आएगा। किसमें? एनाफेज में। क्या था देखिएगा, मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे। ठीक है, जैसे ही एनाफेज आएगी पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म से ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा। कौन? क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो टूट गया ना। कौन टूटा? सपोज ये क्रोमोसोम फर्स्ट है और ये क्रोमोसोम सेकंड है। ठीक है, जैसे ये टूटेगा तो एक नया क्रोमोसोम बनेगा, लेकिन उस नए क्रोमोसोम को भी अभी भी मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट, और इसको भी क्या बोलूंगा? फर्स्ट। लेकिन इस क्रोमोसोम फर्स्ट में एक क्रोमेटिड है और इस क्रोमोसोम फर्स्ट में भी क्या है? एक क्रोमेटिड है। तो जरा सोचिए, क्रोमोसोम फर्स्ट कितने क्रोमोसोम में डिवाइड हो गया? दो। फर्स्ट ये भी है, फर्स्ट ये भी है, क्योंकि ये दोनों किससे बनाए गए हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट से। ठीक है, सिमिलरली क्रोमोसोम सेकंड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो। ये भी क्रोमोसोम सेकंड, ये भी क्रोमोसोम सेकंड, जो किससे बनाए गए हैं? क्रोमोसोम सेकंड से। लेकिन इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे? दो। इसमें अकेले में एक क्रोमेटिड है और इसमें भी क्या है? एक क्रोमेटिड है। तो सोच समझ के मुझे बताएं बेटा जी, देखकर, क्या इस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने थे? दो। लेकिन अब एनाफेज में इस सेल में कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको? चार। डबलिंग हो गई है या नहीं हो गई है? किसकी? क्रोमोसोम की। लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे, लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। तो सोच समझ के मुझे बताएं, मैंने यहां पर स्टार बनाकर लिखा हुआ है क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल का मतलब कि क्रोमोसोम फर्स्ट जो है वो कितने हो जाएंगे? दो। क्रोमोसोम फर्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्ट, क्रोमोसोम सेकंड, क्रोमोसोम सेकंड। समझ में आया है या नहीं आया? क्रोमोसोम की नंबर क्या हो रही है? डबल। याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? याद रहेगा। अब देखिए, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम धीरे धीरे खिंचते 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 पुल करते 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 कहां पर लाए जाएंगे? पोल्स पर। अब एक क्रोमोसोम को लाने के लिए एनर्जी खर्च होगी कितनी? अराउंड 30 ATP रिक्वायर्ड टू कैरी वन क्रोमोसोम एट पोल्स। क्लियर है? सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज थी। कौन सी? एनाफेज। क्योंकि बच्चों याद रखना, यही वो फेज है, यही वो फेज है, वापस से बोल रहा हूं, यही वो फेज है जो डिफरेंस लेकर आती है किसके बीच में? माइटोसिस एंड मियोसिस में। ठीक है, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो इस एनाफेज को जो माइटोसिस में हो रही है, इसको मैं मियोसिस जब पढ़ेंगे तब वापस से रिकॉल करके याद दिलाऊंगा आपको। ठीक है, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फेज थी। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करने वाले हैं द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज टेलोफेज। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। अब याद करिए, प्रोफेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे क्योंकि साइटोप्लाज्म डेंस हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बना दिया था? क्रोमोसोम। अब यहां पर क्या आएगा? सोचिए, एनाफेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोम कहां पर पहुंच गए थे? पोल्स पर। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? देखिएगा कि क्रोमोसोम
वो क्रोमोसोम जिनके अंदर क्या था, सिंगल क्रोमेटेड, अगेन क्या होंगे, कंडेंस नहीं होंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएंगे। किसमें, क्या बना देंगे, क्रोमैटिन। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, क्रोमैटिन का। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम कंटेनिंग सिंगल क्रोमेटेड डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। वापस से जाल बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमैटिन का। अब उस क्रोमैटिन के ऊपर याद करिए, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहां पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप या मेम्ब्रेन असेंबल एट पोल्स। तो दोनों पोल्स पर जो क्रोमैटिन बनेगा उनकी कवरिंग कौन कर देगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फाइनली सोचिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दो न्यूक्लियस का। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आपके रीअपीयर हो जाएंगे। इमेजिन करिए एक सेल जिसके अंदर पहले क्या था, एक न्यूक्लियस, अब एक सेल जिसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस, व्हिच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग मेथड से होता है, ये याद रखना। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग मेथड से क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहला, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होता है, भूलना मत, एट लेट एनाफेज, यानी एनाफेज जब एंड हो रहा था तब स्टार्टिंग हो गई थी किसकी, साइटोकाइनेसिस की। जबकि प्लांट में ये कब स्टार्ट हुआ था, जब टीलोफेज एंड होने वाला था तब स्टार्ट हुआ था क्या, आपका साइटोकाइनेसिस। पहला डिफरेंस। दूसरा, ये जो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होता है वो कौन से मेथड से होता है, प्लांट में किस मेथड से होता है, नाम बिल्कुल मत भूलना। क्या, इन एनिमल सेल द साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड सेल फरो मेथड। वर्ड मत भूलिएगा, सेल फरो मेथड, while in plant it is called cell plate method। भूलना मत, cell plate method in plant cell and cell furrow method in animal cell। ठीक है, आइए पहले हम एनिमल सेल की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, प्लांट की। ठीक है, तो देखिएगा एनिमल सेल में क्या हुआ, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या हुआ कि इस मेथड में आपने देखा कैरियोकाइनेसिस हो गया है, न्यूक्लियस बन गए। अब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन है बेटा जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या डेवलप करेगी, एक फरो, एक दरार अंदर की तरफ, एक फोल्ड अंदर की तरफ। ठीक है, और ये फोल्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया ये किधर की तरफ बढ़ रहा है, टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स पेरिफेरी। समझ में आ रहा है ना, टुवर्ड्स सेंटर। सो अब जरा सोचिए, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फाइनली ये फरो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जिससे दो अलग अलग सेल डेवलप हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड सेल फरो मेथड। सिंपल सा था ना। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये सेल फरो मेथड कौन से ऑर्डर को शो कर रहा है, कौन से मैनर को शो कर रहा है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर को या सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर को। सिंपल सा आंसर है टुवर्ड्स द सेंटर, इट मींस इट शो सेंट्रीपिटल मैनर और सेंट्रीपिटल ऑर्डर ऑफ साइटोकाइनेसिस। बताइए ये सिंपल सा समझ में आया या नहीं आया। चले आगे, नेक्स्ट। अब किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लांट सेल की। अब देखिए प्लांट सेल में फरो क्यों नहीं डेवलप हो सकती थी, क्यों, क्योंकि प्लांट में एक रिजिड आउटर कवरिंग थी, दैट इज सेल वॉल, जो अंदर की तरफ फोल्ड तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए यहां पर सेल फरो मेथड नहीं मिलेगा। तो कौन सा मेथड मिल रहा है, सेल प्लेट मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये याद करिए, हमने बात करी थी कि टीलोफेज में सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो रहे थे, बात करी थी। तो देखिएगा लेट टीलोफेज में सेल ऑर्गेनल, पर्टिकुलरली कौन सा, गोल्जी बॉडी। याद करिए गोल्जी बॉडी जब हमने पढ़ा था तो गोल्जी बॉडीज की तीन फॉर्म थी, कौन कौन सी, याद करिए, याद करिए फटाफट। गोल्जियन वेसिकल्स नाम से कोई स्ट्रक्चर थी या नहीं थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीन फॉर्म थी गोल्जी बॉडीज की। ये गोल्जी बॉडीज किसके कॉम्बिनेशन से बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो याद करिए कोई वेसिकल्स नाम की कुछ स्ट्रक्चर थी या नहीं थी। तो याद रखिएगा इस चीज को, क्या कि सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, गोल्जी वेसिकल्स, याद करिए कौन, गोल्जी वेसिकल्स, माइक्रोट्यूब्यूल और थोड़ी सी अमाउंट में कौन,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन? 3 चीजें। क्या? गोल्जी वेसिकल्स, माइक्रोट्यूब्यूल एंड लिटिल बिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपोजिट एट द सेंटर। कहां पर डिपोजिट हो रहे हैं? सेंटर में। और धीरे 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 बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, किधर की तरफ? पेरिफेरी की तरफ। और जब ये धीरे 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 बढ़ते जाएंगे तो जरा सोचिए, ये ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है? सिंपल सा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो याद रखना, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कौन से मैनर को शो करता है? सेंट्रीफ्यूगल। जहां पर किसका डिपोजिशन हो रहा था? 3 स्ट्रक्चर्स का, गोल्जी वेसिकल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और थोड़ी सी अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कहां पे? सेंटर में। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं किसकी तरफ? पेरिफेरी की तरफ। और एक प्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस प्लेट इज कॉल्ड सेल प्लेट। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल प्लेट, जिसने साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया? डिवाइड, और क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट किया है क्या? साइटोकाइनेसिस इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बच्चों ये हमने बात कर ली किस चीज की? कंप्लीटली माइटोसिस की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो मैं आपको दूंगा उसमें हम बात करेंगे किसकी? मियोसिस की। ठीक है। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ठीक है। ओके देन, सी यू।